If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So today we will be completing the problem set of quadratic equations, and also this chapter will be complete after this lecture. So the students who have joined to this channel new, I want to tell you all that before quadratic equations, I have also completed linear equations in two variables and similarity. If you still haven't watched that videos, then you can click on the I button above and check those lectures there itself. Okay, so now let us start with today's lecture. So we have to do now question number 9, 11, 12, 13, 14 and 15. Question number 10 is deleted from your syllabus. So now we will be starting question number 9. So see, question number 9 says, the sum of two roots of a quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. Now जब भी रूट्स की बात होती है, you all should remember that roots are defined into alpha and beta. हम कभी भी रूट्स की बात किस में करते हैं? अल्फा और बीटा में, ठीक है. एंड उसके जो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज भी पढ़े थे, which you all must remember up till now. So it says that the sum of two roots of a quadratic equation is 5. So it says that alpha plus beta is equals to 5 when alpha and beta are the roots of the quadratic equation. Okay, then the second condition says sum of their cubes is 35. Their cubes means alpha cube plus beta cube. Okay, the sum means addition of their cubes is 35, and then we have to find the quadratic equation. Okay, so now for forming a quadratic equation, we had learned a formula that was x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. Okay, I hope this much was clear to you all. Formula we will be needing alpha plus beta and alpha into beta. So alpha plus beta है हमारे पास, but we don't have alpha into beta. So for calculating that, we will use this. So we will have to calculate using the formula of alpha cube plus beta cube. The formula for alpha cube plus beta cube is alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha into beta alpha plus beta. Okay, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को पहले दिया था. So alpha cube plus beta cube is 35. Now here it is 5 cube minus 3. Alpha into beta हमें ढूंढना है, so keep it as it is, and alpha plus beta is 5. Then simplified. 35 is equals to 5 cube is 125. How? 5 5s are 25, 25 5s is 125. Minus 5 3s are 15 alpha beta. Okay, then take this 125 there, so it will be 35, or else if you don't want the things in negative, so do one thing, take this 15 alpha beta there. Okay, so keep it as 15 alpha beta is equals to 125 minus 35. Okay, so 15 alpha into beta will be, this will be 0 and this will be 90. This will be 90. See, 5 minus 5 0 and 12 minus 3 will give me 9. Then alpha into beta will be 90 upon 3. Sorry, 90 upon 15. 90 upon 15. Now you can directly calculate this with the help of 15's table. But if you don't know the table of 15, so you can go with the table of 5. 5 3s are 15. Then 5 1s are 5. 4 remaining. So 5 8s are 40. Then 3 1s are 3 6 are. So alpha into beta is equals to 6. Now we got the formula, the value of alpha into beta. Now we will substitute these values in our general formula. So equation is, what is the equation that we have? Write this equation again, x square minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. Okay, so now x square minus, what is alpha plus beta? 5x. Plus alpha into beta is 6, which is equals to 0, and this is your required equation. That's it. So this was very easy. The only one thing that you have to remember here is the formula of alpha cube plus beta cube. अगर ये formula गलत हो गया तो फिर पूरा सम आगे गलत हो जाएगा. Okay, so remember that you have to remind the formula of alpha cube plus beta cube. ये आप लोग नहीं भूल सकते. Okay, so first of all take a screenshot of this sum. Okay students, I hope that I have taken a screenshot of this sum. So after this we will be starting with question number 11. Question number 10 जो है, I am repeating again, is deleted from your syllabus. Okay, so copy screenshot ले लिया है. So now we will be starting with question number 11. Okay students, so now let us start with question number 11. Question number 11 says
Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000. Find the amount each one has. So now Mukund possesses rupees 50 more than Sagar possesses. So we'll assume that Sagar has rupees X. Let Sagar has rupees X. Use this, don't use RS. Now we use this for a rupees sign. Okay, so let Sagar has rupees X. Therefore Mukund के पास कितना होगा? Mukund will be having, therefore Mukund will have how much? Rupees X plus 50, because he has 50 more than what Sagar possesses. Correct? वही दिया है क्वेश्चन में. See, Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. Okay, so Mukund will have rupees X plus 50. Then their product. So according to given condition, the product of both of this is 15,000. So X into X plus 50 is equals to 15,000. Okay, now simplify this. So it will be X square plus 50X is equals to 15,000. Now take this 15,000 in your LHS. So X square plus 50X minus 15,000 is equals to 0. That's it. ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. अब इसके आगे आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व इट, बिकॉज अभी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनका सिर्फ वर्डिंग से इक्वेशन बनाना डिफिकल्ट है. देन द इक्वेशंस आर वेरी इजी. एंड वैसे भी हमने थ्रू आउट द चैप्टर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स हम लोग ने सीखा है. सो आई हैव टॉट यू अ लॉट ऑफ सम्स. सो नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस. जो चीज़ डिफिकल्ट है नहीं है आप लोग के लिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आप लोग इक्वेशन बनाएंगे थ्रू द वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वो मैंने बना के दे दिया है. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व इट. कोई भी मेथड यूज करो मुझे चलेगा. फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज रिड्यूस्ड. सो इसके लिए ट्राई दिस यूजिंग फॉर्मूला मेथड. ओके, and I want your answers in the comments below. So I hope you have copied this up till now. So now we'll be starting question number 12. Okay students, so now let us start with question number 12. अब ये क्वेश्चन जो है वैसे तो आप लोग इसको थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज यूजिंग वन वेरिएबल. बट ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दो वेरिएबल से सॉल्व करना सिखाऊंगी. अब आप लोग बोलोगे मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दैट इज करेक्ट. बट ये अब जब आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, सो क्या आप लोग को ऐसे बोला जाता है कि ये इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, ये चैप्टर इस क्वेश्चन से है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हो, अगर वो कंसेप्चुअली राइट है, प्रैक्टिकली राइट है, तो फिर आप लोग उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सो ये चैप्टर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आप लोग लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. आई मीन वो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वहाँ पे आप लोग दो वेरिएबल्स यूज कर सकते हो. सो दिस सम विल बी इजी यूजिंग टू वेरिएबल्स. Okay, so now see, question number 12 says, the difference between square of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the numbers. So, as you all know, what is the trick? जो भी find करना है उसे assume कर लो. So, we have to find the numbers. So, we will write, अब यहाँ पे दो numbers है. So, we will write, let greater and smaller number की बात हुई है. So, let greater number be x and smaller number be y. So, let greater number be x, okay, and smaller number be y. Smaller number be y. Okay, so according to given condition 1, अब यहाँ पे दो conditions है, correct? So condition number 1 says, see, it says the difference between square of two numbers is 120. मतलब x का square और y का square और उनका difference, that is subtraction. Difference means subtraction. It is given 120. Now, for further simplifying this, we will be needing the help of condition 2. So, condition 2 says, see, the square of smaller number, a smaller number is y, so उसका square is equal to twice the greater number. जो greater number है उसका double, greater number का double. Now, pay attention here. यहाँ पे x को square मत कर देना. क्या बोला है? Square of smaller number is twice the greater number. Okay? Twice the square of greater number नहीं बोला है. So understand the difference. Okay. So now see, we got here y square is equals to 2x. तो इस चीज को आप यहाँ पे substitute कर सकते हो. So x square minus 2x is equals to 120. Okay. Now x square minus 2x
माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0. अब चलो यहाँ पे फैक्टर्स कहेंगे 120 का फैक्टर्स माइनस करके 2 चाहिए, सो इट विल बी 12 10s. वेरी इजी. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0. देन टेक x, मेक पेयर्स ऑफ 2 सबसे पहले तो. देन यहाँ से कॉमन क्या है x, सो x बाहर लिया, अंदर बचा x माइनस 12. यहाँ पे 10 कॉमन है और अंदर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. देन make again the pairs, so it will be x plus 10 into x minus 12 is equals to 0. Correct? Now x plus 10 is equals to 0 or x minus 12 is equals to 0. Okay, so x is equals to minus 10 or x is equals to 12. Okay, अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? 12 या 10, सॉरी 12 या माइनस 10. सो सी, आप लोग को ये फर्स्ट कंडीशन से नहीं समझेगा. कम टू द सेकेंड कंडीशन. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x. अब यहाँ पे माइनस 10 डाल के देखो, सो 2 इंटू माइनस 10 विल बी माइनस 20. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल. सी, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4. सो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है. सो इसके लिए x इज इक्वल्स टू माइनस 10 विल नॉट सेटिस्फाई माई सेकेंड कंडीशन. करेक्ट? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 आएगा. सो आप लोग रीजन क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल्स टू, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12. ठीक है. सो आपका x क्या था? ग्रेटर नंबर. तो आप लोग लिखेंगे या फिर वो फाइनल में लिखो. सबसे पहले अभी जो अपना स्मॉलर नंबर है वो भी ढूंढ लो, इसमें सब्सटीट्यूट करो. सो देयरफॉर y square is equals to 2 into x. This y square is equals to 2x. So y square will be 2 into 12. Okay, 12 2s is 24. So now y square is 24. हमें y ढूंढना है. ठीक है. So y will be square root of 24. लेकिन ये मैंने आप लोग को फॉर्मूला मेथड के टाइम पे एक्सप्लेन किया था. हम कभी भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, बिकॉज यहीं पे जैसे हम लोग ने देखा कि माइनस जो नंबर होता है उसका स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सो माइनस रूट 24 भी 24 हो जाएगा, माइनस रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होगा और रूट 24 का स्क्वायर भी 24 होगा. करेक्ट? तो उसकी वजह से हमें दोनों भी आंसर्स अज्यूम करने पड़ते हैं. सो y इज इक्वल्स टू रूट 24 और y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 24. ओके, तो अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? देयरफॉर greater number is equals to x which is equals to 12. Smaller number is equals to y which is equals to root 24 और minus root 24. ये दोनों भी आंसर्स करेक्ट है. ठीक है. So that's it for this sum. So first of all, take a screenshot of this. Okay students, I hope that you have taken a screenshot. ये सम बहुत ज़्यादा easy था and as I told you all that I solved this using 2 variables. तो ऐसा आप लोग कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को एक ही वेरिएबल क्वाड्रेटिक में यूज करना है, ऐसा कुछ. ठीक है. Just that the concept should be correct. So now we'll start with question number 13. Okay students, so now let us start with question number 13. Question number 13 says, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि रंजना नाम की एक लड़की है. शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब वो स्टूडेंट्स का नंबर हमें नहीं दिया है, वही हमें फाइंड करना है. इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. सो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है? 540. सो विल राइट नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 540. फिर आप लोग लिखो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है ना. सो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x. सो देयरफॉर ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी ऑरेंजेस? देयरफॉर ईच स्टूडेंट विल गेट 540 अपॉन x ऑरेंजेस is equals to 540 upon x oranges. Now आप लोग पूछेंगे मैम ये कैसे आया? See, it is a very simple concept. If I tell you all that I have 50 chocolates and I have to distribute it among 5 students. मेरे पास 50 chocolates है
and I have to distribute among 5 students. So every student को कितने chocolates मिलेंगे? So we'll say ma'am 50 divided by 5. So 5 ones are 5 tens are. So every student will get 10 chocolates. Correct? तो उसी तरीके से Ranjana has 540 oranges and she has to distribute it among x students. So how much oranges will each student get? So each student will get 540 upon x oranges. ठीक है? So this is clear. Now come to the second condition. When number of students, now when number of students is equals to x plus 30. पहले से 30 students बढ़ गए. क्या बोला? If 30 students were more, correct? So number of students x plus 30, 30 more. तो oranges का number तो उतना ही है. Number of oranges still are 540, correct? Number of oranges is equals to 540. So each student will get how much? Therefore, each student will get 540. अभी स्टूडेंट्स का नंबर कितना है? पहले स्टूडेंट्स का नंबर था x. सो हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 540 अपॉन x. अभी स्टूडेंट्स का नंबर है x प्लस 30, तो हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 540 अपॉन x प्लस 30. दैट सिंपल. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे. अभी हम गिवन कंडीशन क्या दिया है? अगर पहले से 30 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो हर स्टूडेंट को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे. मतलब इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये इनिशियल कंडीशन था, इसमें से अगर मैं इतने स्टूडेंट्स बढ़ा दूँ तो मेरे हर स्टूडेंट को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे. सो इट विल बी 540 अपॉन एक्स. जस्ट अ सेकेंड. दिस विल बी 540 अपॉन एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, इज इक्वल्स टू 3. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस फर्दर हियर. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी भी आपको न्यूमरेटर में दोनों नंबर सेम दिख रहा है ना, 540 उसको कॉमन ले लो. सो दैट आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 और 1 हो जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में ईजी होगा. सो सी, आई टेक 540 कॉमन. सो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3. ओके, सो 540. Now you will have to cross multiply this. So this will be x plus 30 minus x upon, अब देखो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x का 30 में मल्टीप्लाई, सो 30x. This will give me 3. So 540 into x minus x will get cancelled. So 30 upon x square plus 30x is equals to 3. ठीक है. अब ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं यहाँ पे ले लूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 540 into 30 is equals to 3 into x square plus 30x. आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा. ये यहाँ डिनोमिनेटर में था, वहाँ गया तो न्यूमरेटर में चला गया. ठीक है. सो नाउ सी 540 into 30. सो दिस विल बी, जस्ट अ सेकेंड, इसको कैंसिल मत करो, ये 3 को भी यहाँ पे ले लो. सो 540 into 30 अपॉन 3 is equals to x square plus 30x. Why I did this? Just to simplify. So see, 3 ones are 3 10s are 30. अब easy हो जाएगा. 540 into 10, so 5400. ठीक है, डायरेक्टली आंसर है. इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x. अब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए तो 5400 को यहाँ पे ले लो. सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400. सो अरेंज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 30x minus 5400 is equals to 0. This is your required equation, quadratic equation. अब इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. यही पार्ट ट्रिकी था. ये इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी ये भी आप लोग को आता था. ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से आता है. सो फिर भी मैंने बता दिया. आई गिव यू ऑल द इक्वेशन. सो आगे आप लोग इसको सॉल्व करो. एनी ऑफ द मेथड्स यू वांट एंड आई वांट द आंसर्स इन द कमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट एंड आई एम टेलिंग अगेन, मुझे आंसर्स कमेंट्स में चाहिए. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. अगर आप लोग को डाउट्स होगा मुझे कमेंट्स में पूछ लो तो मैं आप लोग को बता दूंगी. ठीक है. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 14. Okay students, so now let us start with question number 14. Now question number 14 and 15 are very important questions. So you all can mark them, you all can give them a star mark because ये जो questions है वो 4 to 5 marks के लिए पूछे जा सकते हैं. Question number 14 says, Mr. Dinesh owns an agricultural farm at village Talwir. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth.
सबसे पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। उनका एक फार्म है विच इज रेक्टेंगुलर, करेक्ट, एग्रीकल्चरल फार्म एट द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 more than twice द ब्रेथ। अब मुझे कैसे पता चला कि वो रेक्टेंगुलर है? बिकॉज सी, सबसे पहले मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया। नाउ लेंथ ऑफ द फार्म is 10 more than the length of the breadth. Okay, so यहाँ पे breadth, ये हमारा breadth होता है, ये हमारा length होता है, correct? So I took breadth as x. So इसका कितना हो जाएगा? 10 more than this. So x plus 10 लिख सकते हो, फिर 10 plus x. You can write x plus 10. Length कितना हो गया? x plus 10. Okay, इतना समझा डायग्राम में। ये उनका मिस्टर, क्या नाम है उनका? मिस्टर दिनेश। So मिस्टर दिनेश का एक फार्म है इन हिज विलेज, और उसका ब्रेथ जो है वो x हम लोग ने अज्यूम किया, बिकॉज हमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 more than द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, करेक्ट। तो हमने ब्रेथ को अगर x अज्यूम किया, सो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? 10 more, दैट इज x plus 10. देन वील रीड द क्वेश्चन फर्दर। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। अब यहाँ पे उन्होंने उनके फार्म के अंदर एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड उन्होंने बनाया है। सी, ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो आगे क्या बोला है? द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म, 1/3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। तो ब्रेथ कितना है? x, उसका 1/3 टाइम्स मतलब 1/3 इंटू एक्स, विच इज 1/3 x, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो x/3, करेक्ट। अब स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होता है। सो ये x/3 है, तो ये भी x/3 हो जाएगा, करेक्ट। इसके लिए वहां पे बोला है साइड ऑफ द पॉइंट, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ नहीं यूज किया है। देन फर्दर द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब तक हम लोग ने जितना ड्रॉ किया है वो सब हमें लिखना भी पड़ेगा, करेक्ट। सो नाउ वील राइट ऑल ऑफ दैट। आई होप आप लोग को डायग्राम क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो फिर वापस थोड़ा बैक जाओ, वापस सुनो मैंने क्या एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ सी, लेट breadth of farm, I'm sorry, this will be D, okay, let breadth of farm is equals to x meters, therefore length of farm कितना हो जाएगा? length of farm will be x plus 10 meters, correct, it will be x plus 10 meters. then उन्होंने एक स्क्वायर शेप पॉइंट बनाया। सो साइड ऑफ पॉइंट इज 1/3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, करेक्ट, 1/3 टाइम ऑफ ब्रेथ है। सो विच विल बी x/3, ठीक है। दिस इज द साइड ऑफ पॉइंट, यू कैन राइट अगेन साइड ऑफ पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक समझा? ये जो हम लोग ने जो भी डायग्राम है हम लोग ने रिप्रेजेंट किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अ करेक्शन, यहाँ पे 2 टाइम्स ट्वाइस द, यहाँ पे क्या बोला है देखो, ट्वाइस एंड 10 प्लस बोला है, देखो 10 more than twice the breadth, we missed twice word, ठीक है। सो ये 10 more than twice the breadth, सो 2 into x plus 10 आएगा, या फिर आप लोग इसको 2x plus 10 लिखोगे, ठीक है, 2x plus 10, दिस विल बी 2x plus 10। तो यहाँ पे भी इसको 2x plus 10 कर दो, ठीक है। आई मिस दैट वर्ड ट्वाइस, इसके लिए थोड़ा इक्वेशन प्रॉपर नहीं आ रहा था। सो लेंथ ऑफ फार्म विल बी 2x plus 10। नाउ सी फर्दर, अब हमें क्या बोला है कि एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, ओके, इट इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। सो नाउ एरिया, फार्म क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, सो उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो राइट लेंथ into breadth, which will be equal to 20 into area of pond. Now pond is a square shape, so it will be side square. The area of square is side square, correct. Now length into breadth, what is the length? 2x plus 10. So 2x plus 10 into breadth is x, which is equals to 20 into side is x upon 3, so uska square, so x upon 3 the whole square. Okay, now simplify this further. So this will be 2x square plus 10x is equals to, now see, 20 into x का square, x square, so it will be 20x square and 3 का square will be 9, so this will be 9. Okay, इतना clear है? Now see, अब ये 9 जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will be 18x square plus
90x इज इक्वल्स टू 20x²। ओके, अगर ऐसे नहीं समझा तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे 9 × 9 आएगा तो 9 9 कैंसिल हो गया और ये दोनों में 9 मल्टीप्लाई हो गया। देन टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर इन द RHS। सो 20x² minus 18x² minus 90. So 0 is equals to, this will be 2x² minus 90. अब इसको अरेंज कर दो, 2x² minus 90 is equals to 0. Now यहाँ से अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, x² minus 45 is equals to 0. करेक्ट या सो अब इसके आगे अभी आप लोग दिस विल बी 45x, करेक्ट, ये यहाँ पे x लिखना है। सो जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी 45x विच विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन निकालो तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 45। ओके, अब मुझे बताओ x क्या था, हमारा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल था। सो कैन मतलब हमारा ब्रेथ फार्म का था, ठीक है, रेक्टेंगल है फार्म बट अभी फिलहाल वो क्या है, हमारा फार्म है। सो x इज द ब्रेथ ऑफ द फार्म। सो कैन द ब्रेथ बी 0? इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 45। तो आपको ब्रेथ मिल गया 45, तो लेंथ क्या मिलेगा वो आप लोग ढूंढ लो। और आप लोग को आगे क्या बोला है, या वही ढूंढना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉइंट। तो ब्रेथ क्या आएगा, ब्रेथ तो 45 आएगा और अभी इस वाली इक्वेशन में x को 45 सब्सटीट्यूट करो एंड लेंथ का आंसर निकालो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया होगा। कैलकुलेट कर लिया है तो अब भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, नहीं किया है तो लेक्चर के बाद भी आप लोग सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो एंड मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, sorry, I mean of this chapter as well as of this lecture. Okay students, so now let us start with question number 15. Now before starting question number 15, trust me students, ये question बहुत ज़्यादा easy है, बहुत सारे students को ये बहुत difficult लगता है and many of the students even leave this question. So I am telling you that this question is itself very easy. In fact जब इसका quadratic equation form हो जाएगा so आप लोग ही मुझे बोलोगे मैम इसका जो quadratic equation है वो अब तक के सारे word problems में सबसे easy था, करेक्ट। सो उससे पहले का जो प्रोसेस है वो बस आप लोग को एक बार समझना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे कैसे। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग चलाओ तो फिर अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। सो अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। नाउ ये लाइन को अंडरलाइन करो, कहाँ से, स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। अंडरलाइन दिस लाइन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। सो हर जो टैप है, एवरी टैप मतलब एक बड़ा टैप है और एक छोटा टैप है, तो उसमें से हर टैप, बड़े टैप को कितना टाइम लगता है टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में और छोटे टैप को कितना टाइम लगता है टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में, ठीक है। सो वो हमें ढूंढना है। सो आप लोग बोलो, लेट द लार्जर टैंक takes x hours to fill the tank completely, correct, to fill tank completely, yeah, this is correct. Therefore अब स्मॉलर टैप इससे उससे 3 गुना नहीं, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, 3 घंटा ज़्यादा लगता है मतलब x+3, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस होता है। सो द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक, ठीक है। सो देयरफॉर स्मॉलर टैप, यहाँ पे टैंक नहीं, दिस विल बी टैप, ओके, दिस विल बी टैप। बहुत ज़्यादा टाइम ये सब हो गया है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, बट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। देयरफॉर स्मॉलर टैप विल टेक x plus 3 hours to fill tank completely, या फिर to completely fill the tank, एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही बार, to fill tank completely, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ ही सबसे डिफिकल्ट थी, अब इसके आगे तो ईजी है। देखो अब मैं लार्जर टैप की बात करती हूँ।
आज टाइम, ठीक है। अब देखो उसको 1 आवर में कितना भरेगा, सी टैंक विल फिल कम्प्लीटली इन 1 आवर, इफ फिल्स इन 1 आवर, अगर वो 1 घंटे में भरता है सो वो कितना हो जाएगा 1/x, करेक्ट, बिकॉज इट इज x आवर्स, सो दिस इज 1/x, देन फिल्स इन 2 आवर्स, तो अगर 2 घंटे में भरेगा सो इट विल बी 2/x, ठीक है। अगर 1 घंटे में भरता है सो 1/x, 2 घंटे में 2/x। नाउ सिमिलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्मॉलर टैप, सो स्मॉलर टैप के लिए fills in 1 hour, fills in 1 hour will be, how much it will be, 1/x plus 3, because यहाँ पे हमने देखा smaller tap will take x plus 3 hours to fill the tank completely, so fills in 2 hour कितना हो जाएगा, fills in 2 hours will be 2/x plus 3, ठीक है। इतना समझा, 2 आवर्स में कितना टाइम लगेगा, 2/x plus 3। अब उसके आगे क्या बोला है वो देखो, अगर दोनों साथ में भरते हैं, क्या बोला है, सी अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, ओके, इफ ओनली, अभी हम लोग ने 2 आवर्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 2 आवर का कंडीशन दिया था, अ टैंक कम्प्लीटली 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। सो अब अगर दोनों टैप ओपन है तो कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे में, 2/x plus 2/x plus 3, करेक्ट। समझा आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ, पहले हम लोग ने अगर सिर्फ बड़ा टैप ओपन है तो 2 आवर में उसको कितना टाइम लगेगा 2/x, अगर सिर्फ छोटा टैप ओपन है तो उसको 2 आवर्स में कितना लगेगा 2/x plus 3, मतलब वो इतना टाइम लेगा, करेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाता है, सो इट विल बी 2/x plus 3 plus 2/x is equals to 1, ठीक है। इतना समझा। अब मैंने क्या बोला था, ऐसी क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को कॉमन ले लो, सो इट विल बी 2 बाहर आ गया, 1/x plus 3 plus 1/x which will be 1, then 2 क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, x plus x plus 3 अपॉन, अब इसको x स्क्वायर प्लस 3x, मैंने x को दोनों भी टर्म्स में मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 1, देन 2 दिस विल बी x plus x 2x plus 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये 2 को ये 2x plus 3 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 4x plus 6, और ये जो है वो यहाँ पे नीचे था, दैट इज डिनोमिनेटर में था, वहाँ पे गया तो ऊपर चला जाएगा। फिर आप लोग ऐसे बोलो, अगर ये कंफ्यूजन होता है तो बोलो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे डिवाइड में था, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 into x square plus 3x विल बी x square plus 3x। नाउ 0 is equals to x square plus 3x minus 4x minus 6, so this will be x square minus x, 3x minus 4x will be minus x minus 6, so x square minus x minus 6 is equals to 0, this is your required equation। मैंने पहले ही बोला था इक्वेशन जो आएगा वो बहुत ही ईजी आएगा। अब आप लोग को 6 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनको माइनस करके 1 आना चाहिए, 3 2 6, इतने ईजी फैक्टर्स, और इक्वेशन भी काफ़ी सिंपल है क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, सिर्फ यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है दैट इज 6, सो आई टोल्ड यू इट वाज दैट ईजी। तो ये इक्वेशन को आगे आप लोग सॉल्व करोगे। अब एक बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक आंसर आप लोग को नेगेटिव आएगा और एक आंसर पॉजिटिव आएगा। सो एक्स क्या था, लार्जर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल टैंक कम्प्लीटली, ठीक है, तो कितना टाइम उसको लगता है x आवर्स। सो कभी टाइम नेगेटिव में हो सकता है क्योंकि उसने -3 आवर्स में भर दिया पूरे टैंक को, इट इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो वो आंसर इसके लिए नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसके लिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी पॉजिटिव वाला, तो आपको x का आंसर मिल जाएगा। फिर स्मॉलर टैप के लिए x का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना जो भी होगा, सो x + 3 करोगे तो आपको स्मॉलर टैप का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को सारे सम्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो था वो थोड़ा आप लोग को लगा होगा कि मे बी फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, सो आई एम श्योर आप लोग को समझ जाएगा, ठीक है। स्पेशली 15 थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, बट ये पार्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया ना तो फिर आगे तो सॉल्विंग बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो विथ दिस आई एम अनाउंसिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल। Now the next chapter that I have planned to start is Pythagoras theorem, that is your second chapter of geometry। अगर आप लोग का कोई और डिमांड्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो अभी मैं 1-2 दिन बाद पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो डालूंगी, तो अगर मेरे को स्टूडेंट्स बोलते कि मैम ये नहीं ये चैप्टर लो, हम लोग को ये सीखना है, सो देन आई स्टार्ट विद दैट।
अगर मुझे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है देन आई विल स्टार्ट विद पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग के जो अलजेब्रा है उसमें से 2 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और ज्योमेट्री में से मेंसुरेशन रिड्यूस हो गया। सो नाउ वो 3 चैप्टर्स आप लोग को नहीं पढ़ने। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद पाइथागोरस थ्योरम विच इज द 4th चैप्टर। सो अप टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लाइक द वीडियो, सो वीडियो को लाइक करो, अब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।